what it starts. Yeah, Exactly, that's what it starts. because it was Richie getting angry. Yeah. So when she started understanding that her Swadhisthana chakra was malfunctioning, and that was the reason she had these problems. Probably all the three of you. Yeah. This is the first time I'm publicly speaking, so please forgive me. When Mother invited me, I wasn't too sure. I said, no, Kundalini, no, I'm not letting anyone mess with me. And then she started talking about Swamiji, and when she was telling me about the experience in the cave, I just knew at that time my body just felt the vibration of coolness, and it was wonderful. I have stayed with Swamiji now for a week, and it has been a very wonderful experience. I feel that he has given so much love to all of us, at the same time. A beautiful thing I see is that he has got a family life. He's so down to earth. He makes everything so simple. I think we need to really make everything very simple. And I can't even describe the things, but it has been wonderful talking to him. Two experiences I would like to share with you. It's yesterday when I was sitting at the back, and I was just going round and round and round. And all of a sudden, I felt the wish of Swamiji's energies, and then he was next was on my head, and something was happening. And after that, there was a tremendous change in me, and I felt the energy is so beautiful. I was still in myself. And today morning, there was another experience which I would like to share with everyone, and this shows how powerful these things are if you have not worked with it. It's a simple experience. I asked him a question regarding how do I connect, and if I want to connect, how do I do it? And he didn't answer me. The answer was just, I closed my eyes, and the vibration was just vibrating around me. And the more we do the meditation, it is so, so important that this seed has implanted into us, that we take it and into the full light and the beautiful opportunity which God has given us through Swamiji. We are so fortunate, because I have been on this journey seeking. When Baba came into my life, it was through energies, and I couldn't understand, but now I realize that this is what my path was, to connect with these energies. I feel, and I think that we all have received the lottery in our life. And the biggest lottery of life is now our efforts to worship God. And I have no words to thank. And I really thank from the bottom of my heart for Swamiji to taking us in his fold, and that we will be always in his fold all the time through our journey in this life. Yes, he was on the backside yesterday. She was vibrating, she was shaking, and when Swamiji put his hand on her Sahasrara chakra, she had started releasing the energy from here, from the Adya chakra to the Sahasrara chakra. And regarding the connection, that's what even I have experienced, that whenever I want to connect with him, I just be aware of my Sahasrara chakra, and I'm able to tap it. And the simplicity,
that also Swamiji has said that this meditation is so simple, and for 7 days he has made us practice it. Meditation should start from tomorrow, whatever he has given us. So, and subsequently, after 45 days, we will be able to, we'll settle down with our energies coming in, and then we'll be a balanced person, and we'll be in a better position than what we are today. And simplicity wise, yes, 2 minutes. Can I ask 2 minutes. about? 2 Oh, minutes. sorry. The simplicity, this meditation is so very simple. All other these meditations and whatever informations that we are giving here, they are from different thoughts of schools, but then all of them requires lots and lots of inputs. We have to do so much of hard work, but in this thing it's very simple. Yeah? Is not meaning is the words we have chanted is in India, and yet the words is been written in English. So shouldn't it be In English. In We can translation. help you out if Yes. you want. Yeah, we will tell you. Definitely. After you can meet us, we'll tell you. Yeah, thank okay, thank you. Anybody else, or should we start with our discourse? One more thing, daily I've been asking and saying that on behalf of you, I am requesting Swamiji. These words have got lots of meaning. As Swamiji talked about yesterday's Kandahar airport experience about the plane getting hijacked, the same thing, that the energies, the higher honor energies from Swamiji flows only if we make a wish, only if we request him. Yeah. So that is the reason I have been requesting him daily on behalf of you to start his discourse. That's what I'm going to do right now also. First let me make my papers ready. आए वो सभी पुण्यात्मा बने। आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक 5 अंधों की कहानी से कर रहे हैं। एक बार एक देवदूत आसमान से जा रहा था। जाते हुए उसने देखा एक बगीचे में एक हाथी का स्टैचू बना हुआ था, पुतला बना हुआ था, और 5 अंधे अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से उसका वर्णन कर रहे थे, उसकी कल्पना कर रहे थे। पहला अंधा था, उस अंधे ने उस हाथी के पूंछ को पकड़ा और वो कह रहा था, हाथी की जो पूंछ है उससे ऐसा लग रहा है ये हाथी रस्सी जैसा है। दूसरे एक अंधे ने हाथी का पैर पकड़ा और कहा, नहीं, तेरे को लगता है रस्सी जैसा है, वो खंबे जैसा है। तीसरे अंधे को कहा, हाथी के पेट पे लगा और बोला, तुम लोग जो कह रहे हो गलत है, हाथी पहाड़ जैसा है। चौथे अंधे ने हाथी के कान को हाथ लगाया तो बोला, तुम लोग जो कह रहे हो गलत है, हाथी सुपड़े जैसा है। पांचवें अंधे के हाथ सूंड को लग गया। उसने कहा, हाथी सांप जैसा है। देवदूत ने देखा
पांचों ही अपने अपने तरीके से उस हाथी का वर्णन कर रहे थे और कल्पना कर रहे थे कि हाथी इस प्रकार से होना चाहिए, इस प्रकार का होना चाहिए। तो देवदूत ने उन पांचों को दृष्टि प्रदान की, उनको आंखें प्रदान की और आंखें प्रदान करने के बाद में पांचों लोग हक्के बक्के रह गए कि हमने कल्पना क्या की थी और हाथी निकला क्या है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य परमेश्वर के बारे में, ईश्वर के बारे में कल्पनाएं करता है और कल्पना जब बिना आंखों के होती है तो पूर्णत्व को प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक आपकी दृष्टि नहीं है, आपने का देखने का नजरिया नहीं है, तब तक आपको पूर्णत्व समझ में नहीं आएगा। ऐसा कोई धर्म नहीं है जो धर्म पूर्ण कहा जाए तो धर्म के सभी लोग अच्छे रहते हैं, सभी लोगों में अच्छे लोग रहते हैं, सभी धर्मों में बुरे लोग रहते हैं। लेकिन आपका जो आत्मधर्म है वो आत्मधर्म पूर्ण धर्म है। वो जागृत होने के बाद में परमेश्वर की कल्पना, ईश्वर की कल्पना साकार हो जाती है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग अनुभव बताया है। किसी ने बताया है मुझे ऐसा दिखा, किसी ने बताया है मुझे ऐसा दिखा। देखिए, जो कुछ था वो आपके अंदर ही था, जो कुछ था वो आपके अंदर में सुप्त अवस्था में था, सोया हुआ था। आपने भगवान की जो कल्पना की थी, देवत्व की जो कल्पना की थी, वो जागरूक होने के बाद में देवत्व प्रकट हो गया है। देवत्व प्रकट होने के बाद में आपको दिखा कि भगवान ऐसे है। आपने गुरु की जो भी कल्पना की थी, सभी कल्पना है, क्योंकि आपका गुरु तत्व जागरूक हो गया है। तो आपके अंदर के ये तत्व जागरूक होने के बाद आपको एक नई दृष्टि मिल रही है अपने आप को पहचानने की, अपने आप को जानने की। आपको आश्चर्य लगता होगा कि कुंडली जागृति शरीर का कठिन कार्य, बड़ा कार्य कैसे 8 दिन में संभव हो सकता है। पूर्व जमाने में एक व्यक्ति अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही व्यक्ति की जागृति करता था, एक ही व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार देता था और अपने पूर्ण जीवन काल में एक व्यक्ति का चुनाव करता था। तो उसको जो उपयुक्त व्यक्ति लगता था उस व्यक्ति की जागृति करता था, उस व्यक्ति का आत्म साक्षात्कार करता था। लेकिन जैसे साइंस की प्रगति हुई है, आज हम बैलगाड़ी में नहीं कार में घूमते हैं, ठीक उसी प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र में भी प्रगति हुई है। लेकिन उस आध्यात्मिक क्षेत्र से हमारा संबंध नहीं है, इसी कारण हमको उसकी जानकारी नहीं है, हमको उसके बारे में पता नहीं। देखिए, ये जो क्रिया है शुद्ध इच्छा है, प्रेत क्रिया है, इन दोनों का समन्वय जागृति है। मनुष्य का जन्म जन्म 800 साल से परंपरा चली आ रही थी शक्ति का हस्तांतरण करने की, लेकिन शक्ति का हस्तांतरण ही होता रहा, शक्ति का कभी उपयोग नहीं हो पाया। उपयोग इसलिए नहीं हो पाया कि वो शुद्ध इच्छा उस पर नहीं मिल पाई थी। उनको जो शक्तियां प्रदान करने के लिए शरीर चाहिए था, वो शरीर उनके पास में नहीं था। अगर शरीर उनके पास में होता तो ये कार्य आज से 800 साल पहले ही हो चुका होगा। 800 साल तक इंतजार करने की, 800 साल तक राह देखने की कुछ आवश्यकता नहीं थी। 800 साल के इंतजार के बाद में एक शरीर का निर्माण उन्होंने उनके इच्छा अनुसार किया, जिसको उन्होंने बाद में एक इंस्ट्रूमेंट की तरह वापरा और उसके लिए उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार किया। अध्ययन योग में, और जो स्थूल शरीर है जिसको टच करके दिखाया जा सकता है, उसका अध्ययन मेडिकल साइंस में है। विचारों का अध्ययन मेडिकल साइंस में नहीं है। विचारों का अध्ययन योगी करते हैं, तो योगी करके तो विचारों से देखते हैं विचारों का प्रभाव क्या है। वो प्रभाव बाद में आपके शरीर के ऊपर आने वाला है, उस प्रभाव को देख के उसका इलाज बताते हैं, उसकी चेंजेस बताते हैं। इस मार्ग में कोई भी एस्ट्रोलॉजी नहीं है। जो आपको आपके दोष बताए वो दूर करोगे
बीमारियां ठीक होती हैं। ऐसे रामकृष्ण मिशन के एक कार्यक्रम के अंदर एक हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर थी, बोली मैं रोज आती हूँ इसलिए आज आई हूँ, आज आने की स्थिति में नहीं हूँ, इतना ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो रहा है, जाऊंगी कैसे पता नहीं। मैंने उसको कहा 5 मिनट में ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है, सामान्य हो सकता है, क्या तू विश्वास करेगी? कुछ नहीं, ग्लास में सारे पानी दिया, उसको वाइब्रेशन दिए, वाइब्रेशन देते मैंने बोला मैंने मेरी समग्र शक्ति उसमें डाल दी, 100% पावर डाल दी, लेकिन 100% श्रद्धा तो अपने अंदर निर्माण कर, और 100% श्रद्धा निर्माण करने के बाद में तू 5 मिनट में नॉर्मल हो जाएगी, तेरा बीपी 5 मिनट में नॉर्मल हो जाएगा। उसने थोड़ी देर के लिए ध्यान किया, ध्यान करके पानी पिया, तो पानी पीने के बाद में एक 5 मिनट में उसका बीपी नॉर्मल हो गया। तो डॉक्टर ने फिर प्रश्न पूछा मठाधीश से, बीपी 5 मिनट में कैसे नॉर्मल हो सकता है, तो कैसे संभव हुआ? मठाधीश बोले ये मैंने किताब में पढ़ा है, एक विल पावर रहती है, इच्छा शक्ति रहती है, वो इच्छा शक्ति जिसकी स्ट्रांग हो, जो इच्छा करेगा वो होता है। उसने बोला ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होगा, लेकिन ताली 2 हाथ से बजती है। उसने 100% इच्छा भी करी तो भी 100% रिसीव करना चाहिए। अगर आप आपकी एनर्जी रिसीव नहीं कर रहे हैं तो कमी आपके अंदर है। आप पुट्टुवर्ती जाते हैं, उसके बाद में अगर वहां की एनर्जी रिसीव नहीं कर पाते हैं तो आपको अंदर देने की आवश्यकता है कि मैं वहां जाके भी मेरे प्रॉब्लम्स क्यों दूर नहीं हो रहे हैं। प्रॉब्लम आपके अंदर है, आपको आपका चित्त अंदर की ओर लाने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है कि मैं क्यों नहीं रिसीव कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं एकाग्र हो पा रहा हूँ, क्यों नहीं समर्पित हो पा रहा हूँ। पूर्ण समर्पण में ही आपकी प्रगति है, पूर्ण समर्पण में ही आपका प्रोग्रेस है, लेकिन पूर्ण समर्पित होना पड़ेगा। तो पूर्ण समर्पण के लिए मेडिटेशन का आवश्यकता है, ध्यान आवश्यक है। ध्यान करने के बाद में आपको एकाग्रता आएगी। अभी आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं, मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं, आपको विचार आते हैं, आएंगे, आने दो, लेकिन कुछ दिन बाद जब आप सतत प्रयास करेंगे, सतत अभ्यास करेंगे, आप देखेंगे आपके विचारों के ऊपर आपका नियंत्रण होना चालू हो गया है, धीरे धीरे विचार नियंत्रित होना चालू हो गए। दूसरा, आपको ये सब कुछ प्राप्त करने के लिए एक तीव्र इच्छा की आवश्यकता है। जब तक वो तीव्र इच्छा नहीं होगी कुछ नहीं होगा। जैसे एक बार एक शिष्य ने गुरु को पूछा, गुरुजी मुझे परमात्मा की अनुभूति की इच्छा है, आप अनुभूति कराएंगे? गुरु ने कहा अवश्य कराऊंगा, कल सुबह जब मैं नहाने जाऊंगा नदी पे, साथ में चलना, तेरे को परमात्मा की अनुभूति करा दूंगा। दूसरे दिन गुरु उस शिष्य को लेके नदी पे गया, और नदी में जाके गहरे पानी में जब उसने शिष्य को डुबो दिया और शिष्य सांस लेने के लिए छटपटाने लग गया, बार बार प्रयास करने लग गया बाहर आने के लिए, फिर गुरु ने उसको डुबो दिया। ऐसी प्रक्रिया जब 3-4 बार की, शिष्य डर के मारे भाग गया, किनारे पे जाके खड़ा हो गया। गुरु ने कहा जैसा सांस लेने के लिए छटपटा रहा था, ऐसा जिस दिन परमेश्वर की प्राप्ति के लिए छटपटाएगा उस दिन तेरे को परमेश्वर की अनुभूति हो जाएगी। ये तीव्र इच्छा, ये छटपटाहट आप आपके अंदर निर्माण कर लीजिए। एक बार परमात्मा की अनुभूति होने के बाद में ये बाकी सब कुछ चीजें मिल जाएगी। ये कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं, ये बाय प्रोडक्ट है। एक बार आपका कनेक्शन उस विश्व चेतना के साथ हो गया, उसके बाद में आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूर्ण होगी, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो। दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है जो मेडिटेशन से दूर नहीं हो सकती, मेडिटेशन से हल नहीं हो सकती। जब आपका कनेक्शन वहां हो जाएगा, ऑटोमेटिक होगा। आप करके देखिए, अनुभव लेके देखिए। कितने सारे लोगों ने अनुभव लेके देखा हुआ है। आप 45 दिन मेडिटेशन करके देखिए, 45 दिन ध्यान करके देखिए। चलो करके देखते हैं क्या होता है। ऐसा करके भी जो देखते हैं उनको भी अनुभूति होती है, उनको भी पता चलता है क्या अनुभव है। उसके बाद में मैं नहीं बोलूंगा, आफ्टर 45 डेज आप बोलेंगे, आपके अनुभव बताएंगे, ये अनुभव आ रहे हैं, वो अनुभव आ रहे हैं। एक एक अनुभव आपको आप बताएंगे, लेकिन उसके लिए सतत अभ्यास करना पड़ेगा, सतत मेडिटेशन करना पड़ेगा। आप सोचेंगे एक दिन में कुछ होगा, एक दिन में कुछ होने वाला नहीं। नियमित साधना करना पड़ेगी। परमेश्वर आपके अंदर ही विद्यमान है। हम बोलते हैं परमात्मा का शक्ति प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है, सुप्त अवस्था में सोया हुआ है। उसको जागरूक करने की आवश्यकता है। जागरूक करके उसका कनेक्शन उस विश्व चेतना के साथ करने की आवश्यकता है। इसका कनेक्शन उस विश्व चेतना के साथ हो गया तो विश्व चेतना की एनर्जी, विश्व चेतना की पावर उसको मिलना चालू हो जाती है। और
बनता था, ऐसे ऐसे जातियों के अंदर रहता था, ऐसे ऐसे ट्राइबल लोगों के अंदर रहता था, लेकिन कभी ऐसा कार्य करने का अवसर मेरे को प्राप्त होगा ऐसा मैंने नहीं सोचा। और सिर्फ परमात्मा की इच्छा है, इसीलिए सतत प्रयास करते रहे, सतत अभ्यास करते रहे। इसीलिए परमेश्वर की सिर्फ इच्छा के लिए, परमेश्वर को पाने के लिए सिर्फ आप ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बाकी सब आपको ऐसे ही मिल जाएगा। कुछ इच्छा मत करिए, क्योंकि उस इच्छा के लिए किया आपकी प्रगति अधूरी रहेगी। मैं चॉकलेट के डब्बे की बात कर रहा हूँ, आप एक एक चॉकलेट मत मांगिए, आप पूर्णत्व को प्राप्त करिए, और ये पूर्णत्व को प्राप्त करेंगे आप देखेंगे आपके सब प्रॉब्लम दूर हो गए। गुरु तत्व एक ही है, शरीर विभिन्न हो सकते हैं, भिन्न भिन्न शरीर हो सकते हैं। मैंने आपको बताया कि गुरु तत्व एक है। जिस प्रकार डॉक्टर की कोई जात नहीं होती, डॉक्टर का कोई लिंग नहीं होता, डॉक्टर का कोई धर्म नहीं होता, डॉक्टर का कोई देश नहीं होता, डॉक्टर होता है जीवन बचाने वाला रक्षक, मतलब डॉक्टर। ऐसा ही गुरु है। गुरु का भी कोई धर्म नहीं होता, गुरु की कोई जात नहीं होती, गुरु का कोई रंग नहीं होता, गुरु का कोई शरीर नहीं होता है। गुरु एक तत्व है, उस तत्व को पहचानिए, सारी बातें आपके समझ में आ जाएगी। थोड़ा मनन करने की आवश्यकता है, थोड़ा ध्यान करने की आवश्यकता है। सतत ध्यान करेंगे, सतत अभ्यास करेंगे, तो अभ्यास करते करते आप पूर्णत्व तक प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार पूर्णत्व प्राप्त हो गया, उसके बाद में सारी खोज समाप्त हो जाएगी, सारी छटपटाहट समाप्त हो जाएगी, सब कुछ समग्र समाप्त हो जाएगा, सब कुछ आपको अंदर से मिलना चालू हो जाएगा। आप देखेंगे आपके सब समस्याएं दूर हो गई है, सब प्रॉब्लम दूर हो गए, सब प्रॉब्लम के जड़ आपके अंदर ही है। वो जो दोष है वो सारे दोष दूर हो गए, सारे दोष दूर होने के बाद में सारी समस्याएं दूर हो गई। आपको किसी पे डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है, मेरे ऊपर भी डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। आप आपके पैर पे खड़े रहिए, मैं आपको आपके पैर के ऊपर खड़ा करने के लिए आया हूँ। मेरी इच्छा है आप अपने ऊपर खड़ा करिए। परमेश्वर आपके अंदर है, उसको सिर्फ आपको झांकने की आवश्यकता है। आपको ऐसा होना चाहिए कि परमात्मा आपके अंदर विद्यमान है, तो आपके अंदर का परमात्मा का तत्व जागृत होगा। जागृत होने के बाद में आपका परमेश्वर से कनेक्शन हो जाएगा, परमात्मा से कनेक्शन हो जाएगा, और वो कनेक्शन होने के बाद में सारी रिक्वायरमेंट्स पूर्ण हो जाएगी, सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए सबसे पहले आपको आपके विचारों पे नियंत्रण करना पड़ेगा। विचार नियंत्रित होने के बाद में ये सब कुछ मार्ग निकलेगा, आप मध्य मार्ग में आएंगे। जब तक आप मध्य मार्ग में नहीं आते, आपको परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती, परमेश्वर से कुछ कनेक्शन नहीं हो सकता, चाहे आप कितने भी धार्मिक कृत्य करें। देखिए, धार्मिक कृत्य करने से नहीं, सारे धार्मिक कृत्यों का उद्देश्य निर्विचारता की स्थिति प्राप्त होना है। वो आपको हो रही है या नहीं हो रही, इसका एनालिसिस कीजिए। निर्विचारता की स्थिति होने के बाद में आपका परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित होता है। अगर वो हो रही है आप सही मार्ग पे, करेक्ट मार्ग पे, नहीं है तो उसके लिए प्रयत्नशील होइए। क्यों नहीं हो रही है, विचार कीजिए, सोचिए। लिवर जब आपका गर्म रहता है तो आपको बाहर के थॉट्स आते हैं, बाहर के विचार आते हैं। उन विचारों को एकत्र करिए, एकाग्र करिए, और एक करके आप उसको उद्गामी करिए। सारे पावर एक जगह मध्य नाड़ी में करिए, और मध्य नाड़ी को क्रियान्वित कीजिए। मध्य नाड़ी क्रियान्वित होने के बाद में वो सहस्त्रार पे कुंडलिनी को ले जाएगी, और जब कुंडलिनी को सहस्त्रार पे ले जाएगी, वो सभी चक्रों का भेदन करेगी, और सभी चक्रों का भेदन करेगी, सभी चक्र एक्टिवेट करेगी, और एक्टिवेट करने के बाद में आपकी तंदुरुस्ती अच्छी होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपके अंदर का धर्म जागृत होगा, आपके अंदर का सेंस जागृत होगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका समग्र ज्ञान आपको होगा, आपकी मन की एकाग्रता बढ़ेगी। ये सब कुछ होगा, लेकिन सब कुछ ये आंतरिक क्रियाएं हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको आपके चित्त को अंदर ले जाना पड़ेगा, और जब चित्त को अंदर ले जाएंगे आप देखेंगे शिव और शक्ति का मिलन हो गया है। देखिए, तो कुंडलिनी शक्ति की बात कर रहा हूँ, उस पावर की बात कर रहा हूँ, उस विश्व चेतना की बात कर रहा हूँ, जिस विश्व चेतना ने ये सारे है। मैं आपको प्रधानमंत्री से मिलवा रहा हूँ, फिर आप एमएलए एमपी के पास क्यों जाते हैं? अब सीधा परमेश्वर से कनेक्शन करिए, परमात्मा से कनेक्शन करिए। परमात्मा से कनेक्शन करने वाले में सब कुछ परमेश्वर सब कुछ आपके अंदर ही बैठा हुआ है। आप उसको बाहर ढूंढने की कोशिश मत करिए। जितना परमेश्वर को बाहर ढूंढेंगे आपका चित्त उतना ही बाहर जाएगा। अंतर्मुख होने की आवश्यकता है। परमात्मा आपके अंदर ही बैठा हुआ है, सिर्फ एक भाव आपके अंदर आना चाहिए। ये भाव आ जाएगा, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। दूसरा, ये मैंने मेरा कार्य बहुत प्रामाणिकता से किया है, 8 दिन तक मेहनत की है, लेकिन उस 8 दिन का प्रतिफल तभी मिलेगा जब आप 45 दिन तक ध्यान करेंगे, 45 दिन तक मेडिटेशन करेंगे। तो मेडिटेशन करने 45 दिन तक मेरा
पूर्ण प्रोटेक्शन, पूर्ण सपोर्ट आपको रहेगा। फिर उस पीरियड में अपने आप को सेट कर लीजिए। अगर आपने उस 45 दिन में सेट नहीं किया तो आगे कभी सेट नहीं कर पाएंगे। तो 45 दिन तक पूर्ण अभी एक 45 दिन एक तपस्या करिए, उस तपस्या में सफल होइए। उसके बाद में फिर आप निर्णय करिए। अगर आपको मेडिटेशन अच्छा लगता है तो करिए, नहीं लगता है तो छोड़ दीजिए। मैं कुछ सपोर्ट, कोई फोर्स नहीं करता। आपको अच्छा लगता है ठीक है, नहीं लगता है छोड़ दो। आप किसी भी मार्ग से उत्क्रांति करें, किसी भी मार्ग से आपका आत्मिक विकास करें, मुझे खुशी है। आपको जो मार्ग अच्छा लगे उस मार्ग से करिए, लेकिन इस मार्ग का रिजल्ट देखने के लिए, इस मार्ग का परिणाम देखने के लिए आपको 45 दिन तक मेडिटेशन करना पड़ेगा, 45 दिन तक ध्यान करना पड़ेगा। 45 दिन के बाद में आपको एक परिपक्वता की स्थिति मालूम पड़ेगी। आपको पता चलेगा आपकी क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या प्रगति हो रही है। आपके समग्र वाइब्रेशन चेंज हो जाएंगे, आपके जीवन में पूर्ण बदलाव आ जाएगा। जो लोग आपको पसंद नहीं करते वो लोग भी आपको पसंद करने लगेंगे। कारण क्या है? आपके वाइब्रेशन खराब है इसलिए वो आपको पसंद नहीं करते। जब आपके वाइब्रेशन अच्छे हो जाएंगे वो आपको पसंद करना चालू कर देंगे। आपके छत्र छाया में लोग आना बैठना चालू हो जाएंगे। लेकिन वो सब कुछ तब होगा जब आप 45 डेज तक मेडिटेशन करेंगे, 45 डेज तक ध्यान करेंगे। ध्यान नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं। मैंने आपको बताया, मैंने सिर्फ कनेक्शन कर लिया है। कनेक्शन करने के बाद में कॉन्टेक्ट आपको बनाए रखना है। आपके घर की लाइट आपको जलाएंगे तो होगा, नहीं जलाएंगे तो नहीं होगा। इतने अच्छी भावना से आपने इतना 8 दिन तक सुना, अब ऐसी भावना से आप 45 दिन उसको बना के रखिए और एक अच्छे दिन तक पहुंचे। यही मैं इच्छा करता हूँ। नमस्कार। अब हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे।